Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we are going to talk about past perfect continuous tense. आज के इस लेक्चर में हम past perfect continuous tense को समझने की कोशिश करेंगे. How it is formed and used. इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है and ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है. So let's start our today's topic, and the topic is past perfect continuous. We use past perfect continuous when we talk about a situation that happened over a period of time up to a particular past time. A past perfect continuous. The word continuous आपको बताता है कि जो एक्शन होगा that would be in progress. The action would be in progress. No matter whether you talk about present continuous, past continuous or past perfect continuous. ये continuous, the word continuous ये आपको बताता है कि जो एक्शन होता है that continues, that is in progress, वो progress में होता है, वो चल रहा होता है, वो जारी होता है. ओके, and we use past perfect continuous to talk about our past action. past action के बारे में कौन सा past action जो कि start हुआ होगा in the past, and past में वो क्या up to a certain point of time in the past वो चला होगा, continue रहा होगा, तो उसके लिए हम कौन सा tense यूज करते हैं? past perfect continuous tense यूज करते हैं. अब एग्जाम्पल से इट वुड बी क्लियर टू यू कि आपने past perfect tense यूज कैसे करना है and how it is used. So let's see the example. The first one is we had been playing cricket when it started to rain. We had been playing cricket when it started to rain. Now you try to understand जब भी past perfect tense यूज होता है. past perfect tense, if you remember, I told you in my last lecture जब हमने past perfect tense को समझने की कोशिश की थी कि past perfect tense जो है वो separately in isolation यूज नहीं हो सकता. Whenever you talk about your one action, you won't be using past perfect. आप past perfect जो है यूज करेंगे when you talk about two or more than two actions. Okay, two or more than two actions. और जो first action होगा जो उससे पहले, उसके लिए आप past perfect यूज करते हो, and the second जो following action होगा उसके लिए आप past simple यूज करते हो. So likewise in this sentence we have past perfect tense. This is the past perfect, okay, continuous, and this is the past simple, and we are talking about two actions. हम दो actions के बारे में बात कर रहे हैं. Okay, we had been playing cricket when it started to rain. अब इसका मतलब क्या है कि बारिश के होने से पहले we started playing cricket. We started playing cricket before it started to rain. बारिश के होने से पहले हमने क्या किया? हमने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था. और that time we were in the ये action था that was in progress. The action was in progress when it started to rain. हमने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था और हम क्रिकेट खेल रहे थे जब बारिश होना स्टार्ट हुई. I repeat myself. We had been playing cricket. हम क्रिकेट खेल रहे थे कब? When it started to rain. जब बारिश होना स्टार्ट हुई. अब इसका मतलब क्या है कि हमने क्रिकेट खेलना बारिश शुरू होने से पहले भी started playing cricket. हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया and we were playing it when it started to rain. जब बारिश हुई तो उस समय भी हम क्या कर रहे थे? तो हम क्रिकेट खेल रहे थे और बारिश के होने के बाद जो है we stopped it. बारिश जैसे हुई तो हमने वो क्या किया? We stopped playing cricket. हमने क्रिकेट खेलना बंद किया. लेकिन up to the start of the rain we had been playing. हम खेलते रहे थे. Likewise, I was tired when I got home. मैं थका हुआ था जब मैं घर पहुंचा. मैं थका क्यों हुआ था? Because I had been working hard all day. क्योंकि मैं सारा दिन काम करता रहा था. क्योंकि मैं सारा दिन काम करता रहा था. Now, this is what you are supposed to notice as well कि आप यूज करते हो past perfect continuous tense to talk about cause and effect. cause and effect के बारे में भी आप क्या करते हो? past perfect continuous tense यूज करते हो. cause means एक रीजन होता है, उस रीजन का कोई ना कोई क्या होगा? कोई ना कोई रिजल्ट. एक cause होगा, दूसरा क्या होगा? रिजल्ट. जो cause होगा उसके लिए आप कौन सा tense यूज करोगे? You will be using past perfect. Okay, cause कौन सा? in the past. ठीक है, और उस खास की वजह से जो एक्शन हुआ होगा, जो दूसरी जो चीज हुई होगी, जो रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट के लिए यू विल बी यूजिंग पास्ट सिंपल. अब इसमें है कि आई वाज टायर्ड व्हेन आई गॉट होम. व्हाई आई वाज टायर्ड? ये क्यों हुआ? ये थकान, ये मुझे थकन. व्हाई?
I was tired. Okay, क्योंकि because I had been working hard all day, क्योंकि मैं सारा दिन काम करता रहा था. Now you see, this is the cause. This is the cause. इसके होने की वजह से this thing happened. इसके होने की वजह से this thing happened. ये हुई क्योंकि ये चीज हो रही थी. Now इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हाउ इट इज फॉर्म. आप क्या करते हो, आप सब्जेक्ट यूज करते हो. आफ्टर द सब्जेक्ट आप यूज करते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, एंड दैट इज हैड बीन. हैड बीन इज इट्स हेल्पिंग वर्ब. एंड देन कंटिन्यूअस कोई भी टेंस हो उसमें हम कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको आप इन फॉर्म ऑफ द वर्ब और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हो, तो हम वो यूज करते हैं. सेंटेंस का स्ट्रक्चर फिर कैसे बनेगा, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट. हम क्रिकेट खेलते रहे थे. हम क्रिकेट खेल रहे थे. या सिंपली यू कैन से इट, ओके, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट. ओके, अब हैड बीन अगर आप इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हो तो क्या यूज करोगे, यू विल पुट नॉट बिटवीन हैड एंड बीन. तो आप क्या कहोगे, यू विल बी सेइंग कि वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट. वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट. ओके, नॉट आप यहाँ पे जो है वो इंसर्ट करोगे. एंड इफ यू ट्रांसफॉर्म इट इनटू इंटरोगेटिव, अगर आप इंटरोगेटिव इसको बनाते हो तो कैसे होगा, हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इन्वर्जन. अब ऑक्सिलरी इन्वर्जन में क्या होगा, ये जो हेड होगा ये मूव हो जाएगा बिफोर द सब्जेक्ट. बिफोर द सब्जेक्ट आप इसको पुट करेंगे एंड द सेंटेंस कैसे बनेगा फिर, हैड वी बीन. बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा. हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन. हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट. ओके, सो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि ये नेगेटिव कैसे बनेगा, पॉजिटिव कैसे बनेगा एंड इंटरोगेटिव कैसे बनेगा. एंड यूजेज, यूजेज मैंने आपको बताया कि हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर एन ऑनगोइंग एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू अ पॉइंट इन द पास्ट. एन ऑनगोइंग एक्शन, जो काम आपने स्टार्ट किया इन द पास्ट एंड वो काम क्या था, दैट वाज एन ऑनगोइंग एक्शन. वो एक ऑनगोइंग एक्शन था, वो कंटिन्यू चला, वो चलता आया अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट. और पास्ट तक की किसी टाइम तक वो क्या चलता रहा. फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्टेड डूइंग समथिंग एट 10 AM, आपने कोई काम करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, एंड इट दैट वाज एन ऑनगोइंग एक्शन. आपने स्टार्ट किया, ये 1 घंटे तक चलता रहा, 11 AM तक सपोज करें. एंड यहाँ पे समथिंग एल्स हैपेंड. समथिंग एल्स हैपेंड, एक कुछ और चीज होती है. कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर. वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर. हमें क्रिकेट खेलते हुए 1 घंटा हो चुका था. कब, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रेनिंग जो है वो स्टार्ट होती है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रेनिंग जो है वो स्टार्ट होती है. एंड our action was not finished. जो action था that was not complete, ये incomplete action था and it was in progress, और वो चल रहा था. ओके, और बारिश के होने से वो क्या हुआ, खत्म हुआ. एंड अप टू सर्टेन पॉइंट मतलब वो चलता रहा, ठीक है, ये कंटिन्यू रहा. तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं. लाइकवाइज मैंने आपको बताया कि ये कॉज एंड इफेक्ट के लिए भी आप जो है वो यूज करते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, तो आप कह सकते हैं कि आई वाज टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे. मैं थका हुआ था. व्हाई, बिकॉज मैं सारा दिन काम करता रहा था. लाइकवाइज वी हैव अदर सेंटेंसेस. एट लास्ट द बस केम. एट लास्ट द बस केम, या फाइनली द बस केम. आखिर में बस आ गई. आखिरकार बस जो है वो फाइनली पहुंच गई. And what I had been doing? I had been waiting for 20 minutes. मुझे बस का इंतजार करते हुए 20 मिनट हो चुके थे. इट मीन्स कि मैं 20 मिनट तक बस का इंतजार करता रहा था. 20 मिनट तक. एंड 20 मिनट ये जो एक्शन था that was an ongoing action and it kept continuing up to 20 minutes in the past. 20 मिनट तक ये चलता रहा. up to कब तक, until the bus came, जब तक ये नहीं आई. मुझे इसका इंतजार करते हुए 20 मिनट जो है वो हो चुके थे और 20 मिनट तक मैं जो है इसका इंतजार कर रहा था. लाइकवाइज
we have another sentence as well कि I had been waiting for him. मैं उसका इंतजार कर रहा था for hours, घंटों तक. मुझे उसका इंतजार करते हुए घंटे गुजर गए थे. बिफोर ही केम, उसके आने से पहले. बिफोर ही केम, इट मीन्स कि उसके आने से पहले आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर आवर्स. मैं उसके लिए घंटों तक इंतजार करता रहा था. इट मीन्स के मैंने इंतजार करना पहले ही जो है स्टार्ट किया, और जब तक वो आया तब तक आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम. आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, और उसके आने तक मुझे इंतजार करते हुए घंटे गुजर चुके थे. सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको फास्ट कंटिन्यूअस एंड फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिफरेंस भी समझ आ जाएगा. ओके, द सेंटेंस इज कि इट वाज नॉट रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट. जब हम बाहर गए तो बारिश नहीं हो रही थी. इफ यू रिमेंबर, अगर आपने मेरा फास्ट कंटिन्यूअस पे लेक्चर सुना होगा तो आपको पता होगा कि जो फास्ट कंटिन्यूअस हम वो यूज करते हैं वो एट्स अ मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के लिए यूज करते हैं. एट्स अ मोमेंट ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट. अब इसका मतलब क्या है? इट वाज नॉट रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट. जब हम बाहर गए तो बारिश नहीं हो रही थी. कब? एट द मोमेंट ऑफ आवर गोइंग आउट. एट द मोमेंट ऑफ आवर गोइंग आउट इट वाज नॉट रेनिंग. उस समय जब हम बाहर गए तो उस समय बारिश नहीं हो रही थी. तो कौन सा टेंस यूज हुआ है? पास्ट कंटिन्यूअस यूज हुआ है. ओके, देन क्या हो रहा था? देन द सन वाज शाइनिंग. द सन वाज शाइनिंग. सूरज जो है वो जो है सूरज था. बाहर बारिश नहीं थी, सूरज था. ओके, व्हेन वी वेंट आउट द सन वाज शाइनिंग. ओके, बट इट हैड बीन रेनिंग. इट हैड बीन रेनिंग, बट बारिश हो रही थी. न, उस समय नहीं. उस समय जब मैं बाहर गया तो इट वॉज नॉट रेनिंग आउटसाइड. बाहर बारिश नहीं थी. बट मेरे जाने से पहले इट हैड बीन रेनिंग. और क्या था उसकी वजह से? द ग्राउंड वॉज वेट. मैं जैसे बाहर गया तो उस समय बारिश नहीं हो रही थी. जो है सूरज था बाहर, पर मेरे जो है जाने से पहले बारिश कंटिन्यूअसली वहां पे हुई थी. अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, कुछ समय 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट्स बारिश जो है वो कंटिन्यूअसली होती रही. एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि द ग्राउंड वाज वेट. जिसकी वजह से ग्राउंड जो है वो क्या था? वेट था. या स्ट्रीट, यू कैन से गली जो है वो गीली थी. द स्ट्रीट वाज वेट. ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन, feel free to ask me in the comment box. Like and share the video, and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.